Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. Let's start with the discussion. Some people say that parents should encourage their children to take part in organized group activities in their free time. Others say that it is important for children to learn how to occupy themselves on their own. Discuss both these views and give your own opinion. Discuss both these views and give your own opinion. डिस्कशन बेसिकली है कि क्या बच्चों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहिए या दे कैन एक्चुअली परस्यू समथिंग दैट कैन बी परस्यूड ऑन इंडिविजुअल लेवल ओनली एज वेल. ठीक है. वी आर गोइंग टू सपोर्ट बोथ साइड्स. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट्स फॉर बोथ साइड्स एंड हमने सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड के लिए देने. वील ट्राई टू डिस्कस द पॉजिटिव्स ऑफ बोथ साइड्स एंड मे बी द नेगेटिव्स एज वेल, ताकि जो है वो उसमें हम उसको आगे डिस्कस कर सकें. नंबर वन, इसमें हम बात करेंगे सपोर्ट फॉर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटीज. ठीक है जी. नंबर वन, बच्चा जब ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटीज में जाता है तो उसके सोशल स्किल्स बड़े डेवलप होते हैं. Participating in group activities helps children learn how to communicate, cooperate, and resolve conflicts, skills that are essential for their personal and professional lives. Participating in group activities helps children learn how to communicate, cooperate, resolve conflicts, skills that are essential for their personal and professional lives. Full stop. नंबर टू, उसमें बच्चों को टीम वर्क एंड लीडरशिप का बहुत आइडिया होता है. स्ट्रक्चर्ड ग्रुप सेटिंग्स लाइक स्पोर्ट्स टीम्स और क्लब्स ऑफन foster teamwork and leadership qualities. Structured structured group settings like sports teams or clubs often foster teamwork and leadership qualities, preparing children for future collaborative environments. Structured group settings like sports teams or clubs often foster teamwork and leadership qualities, preparing children for future collaborative environments. Number three, physical and mental well-being. Physical and mental well-being. Many group activities include physical exercise and goal setting, which contribute to both the physical health and mental discipline of children. Many group activities include physical exercise and goal setting, which contribute to both the physical health and mental discipline of children. Number fourth, time management. Scheduled activities teach children how to manage their time better and adhere to routines. Scheduled activities teach children how to manage their time better and adhere to routines. ठीक है. इसके अंदर फिर आगे फर्दर आ जाता है जी सपोर्ट. लाइक अगर हम दूसरी तरफ बात करें, सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशन, तो हम बात करेंगे फॉस्टरिंग इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी. Fostering independence and creativity. When children engage in solo activities like reading, drawing, or imaginative play, they learn to rely on on their own creativity and decision making. When children engage in solo activities like drawing, reading, or imaginative play, they learn to rely on their own creativity and decision making. Number two, self-discipline and focus. Self-discipline and focus. Occupying themselves without external structure helps children develop concentration and the ability to stay engaged without needing constant stimulation. Occupying themselves without external structure helps children develop concentration and the ability to stay engaged without needing constant stimulation. Number three, emotional resilience. Emotional resilience. Independent time allows children to process emotions and deal with boredom or frustration. Independent time allows children to process emotions and deal with boredom or frustration, which builds resilience. Which builds resilience. Number fourth, balance and downtime. Balance and downtime. Too many structured activities can overwhelm children. Too many structured activities can overwhelm children. Unstructured alone time gives them the chance to relax or recharge. ठीक है. इसमें काफी चीजें हम लिख सकते हैं. इसमें हम ये भी बात कर सकते हैं कि मतलब ये जो दोनों साइडों पे हमने टॉपिक तो बता दिए हैं. अगर आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो ऑफ कोर्स द पर्सन विल बिकम रिजिलियंट पेशेंट. स्टूडेंट्स विल बिकम मोर
यू कैन से मतलब इन दोनों चीजों में यू विल सी दैट द पेशेंस विल डेवलप इन वन वे और द अदर। अगर आप टीम के अंदर भी खेल रहे हैं या यू आर एक्चुअली लाइक वर्किंग विद योर ओन सेल्फ एज वेल। अच्छा, अगर आप टीम में खेलते हैं सो दैट इज वेरी मच you can say needed for social life because most probably you'll be doing jobs or you'll be leading a business that will have a team. So team structured environment में बहुत ज़्यादा उसमें एक तरह से ज़रूरी होता है। It really depends from person to person and the dynamic and the person dynamics on individual basis, कि आप लीडिंग फिगर हैं या आप टीम प्लेयर हैं। Some people are very good team players and they become very good leaders. Some people are very good leaders but they are not team players. They can't be a good team player. So that is something that you can like of course talk about as well। When you talk about independent occupation या कुछ वो अकेली अगर हम उसमें हम स्पेसिफिकली बात करें, सो कोई बहुत सारी नीड बहुत ज़्यादा ऐसे स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे आपको इंडिविजुअली बहुत ग्रो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेंटिंग है तो जाहिर सी बात है यू कैन एक्चुअली हैव योर ओन पेंटिंग। ऑफ कोर्स यू कैन कोलैबोरेट विद द अदर पर्सन बट अगेन योर इमेजिनेशन काउंट्स द मोस्ट। तो बिल्कुल आप उसमें इमेजिनेशन के अंदर बात करें या आप उस इन सारी चीज़ों में अगर हम आप अगर कभी डिस्कशन करें तो आप यही कहेंगे वन वे और दी अदर कि ये सारी सिचुएशन ये है कि मतलब अगेन इफ इट इज अ टीम रिलेटेड टास्क, इफ इट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन देन ऑफ कोर्स you'll be working with people, but if it is like again something that is very you can say solo centric, then of course like soul centric या self centric, तो जाहिर सी बात है कि फिर आप अकेले काम करेंगे। In both of these scenarios you are working कहते हैं ना like either individually or with team and again it actually helps you। इंडिविजुअल बेसिस में आप ये भी बात कर सकते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं दैट अ पर्सन इज एबल टू डू सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है कि जी बहुत ज्यादा चीजें हैं जिनके ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी होती है। इफ यू डू नॉट हैव योर मी टाइम और इफ यू डू नॉट वर्क अलोन देन अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस इज के ग्रुप सेटिंग जो है वो आपके थिंकिंग पैटर्न को डिफाइन करती है। बट इफ यू आर हैविंग अ मी टाइम देन एटलीस्ट you become more conscious and you have your own self you can say ओरिएंटेड टाइम। आपका जो सेल्फ ओरिएंटेड टाइम है वो बहुत ज्यादा जो है एक तरह से फिर आ जाता है उसको फिर आप उसके अंदर रिफ्लेक्ट भी करते हैं। यू इमेजिन थिंग्स, यू थिंक ऑन थिंग्स एंड दैट इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यू कैन टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम एज वेल कि किस तरह आपकी जो पेडागोजी है, PEDAGOGY, the pedagogy is basically the art of teaching, how you're being taught। हर टीचर की अब अपनी pedagogy होती है। Some people teach really well, some people don't। Some people have a very different strategy about teaching, for teaching, and some people have very different strategy about and for teaching। So उसमें ये होता है कि वो different मतलब एक तरह से scenarios होते हैं and आपका जो school structure है that is based on class environment, that is based on team environment। तो आप एक क्लास के अंदर होते हैं। इवन दो किंडरगार्टन के अंदर अब जाके बहुत ज्यादा स्कूल्स के अंदर टीचर्स जो हैं और स्कूल फोकस करता है इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे। लेकिन उससे पहले जो जितनी भी डिस्कशन होती है उससे पहले जितनी भी पहले तो इतना ज्यादा जब व्हेन वी वर स्टडिंग आई डोंट थिंक सो दैट वाज देयर वाज अवेयरनेस इन द स्कूल्स इतना ज्यादा। लेकिन अब जाके बहुत ज्यादा स्कूल में अवेयरनेस आ गई है कि हर बच्चे की पर्सनालिटी डिफरेंट है, हर बच्चे के अंदर टैलेंट डिफरेंट है। तो दैट पर्सन हैज टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली बट अगेन यू नीड टू अडॉप्ट एंड अडेप्ट द सोशल सेटिंग। आपको कहीं ना कहीं पे अडेप्ट करनी करनी पड़ती है बिकॉज अगेन अ पर्सन इज काइंड ऑफ अ सोशल एनिमल और जाहिर सी बात है उसको फिर स्कूल के अंदर वो सिखाया जाता है। हाउएवर you can also talk about that like again are the schools the right place for education? Like schools के अंदर ही जाना जरूरी है, किस तरह के स्कूल में जाना जरूरी है? Is religious education necessary only या इसके अंदर मतलब खाली हम बात करें जो हमारा आज का जो कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम है वही उसी के ऊपर हम बात करें? टीचर ट्रेनिंग कितनी हुई हुई है, दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट कि बच्चों को कितना पता है कितना नहीं पता। सो ऑफ कोर्स वी कैन एक तरह से वी कैन एक्चुअली लाइक लुक इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। सो the fact is कि इन सारे scenarios में we can look into these things, we can like certainly talk about these things as well। आपकी pedagogy, आपकी parenting कैसे हो रही है, लिख लें भी अपने पास। parenting है कि आपके अंदर जो values inculcate हो रही हैं वो कैसे हैं। if the values inculcated are that you need to be silent, if you need to
स्टे अवे फ्रॉम फ्रॉम पीपल। इफ यू मतलब होता है अक्सर कि बच्चे माँ बाप कहते हैं कि जी लोगों से कम मिलें, कम बात करें, तो होता है कि बच्चे की पर्सनालिटी उसी तरह ग्रूम होती है इवन इन द स्कूल, बिकॉज बिकॉज होम डिफाइंस द, you can say, mental, you can say, scenarios, and the mental capacity is developed in home as well. Of course schools play a very big role, but again home is the first learning ground for a child. सो उसमें यह है कि पेरेंटिंग क्या वैल्यूज हैं, पेरेंटिंग कैसे हो रही है, पेरेंटिंग कैसे चल रही है। वी कैन सर्टेनली डिस्कस ऑन दैट इज वेल कि आप किस तरह से बच्चे को पेरेंट कर रहे हैं, किस तरह से उसको पढ़ा रहे हैं, किसी तरह से उसको उसके अंदर वैल्यूज इंकलकेट कर रहे हैं, सही गलत उसको कितना बता रहे हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन द एट द एंड ऑफ द डे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। इसके अंदर फिर आप आगे फर्दर बात कर सकते हैं प्रोफेशनलिज्म के अंदर। प्रोफेशनलिज्म में ये है कि the people and the children have challenges in their lives, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में लेग पुलिंग बड़ी होती है। फिर उसमें लेग पुलिंग के साथ साथ जो है वो प्रोफेशनल जेलेसी बड़ी होती है लोगों में आपस में। देन एट द सेम टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट लेग पुलिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोफेशनल जेलेसी, या आप उनको मैनेज कैसे करना है। यू एंड पीपल हैव इनसिक्योरिटीज फ्रॉम यू, एट टाइम्स you become insecure of the other people as well. So in all of these scenarios the child should actually be like taught how to manage the emotions while you're in a team setting and while you are alone। ठीक है। हमारे जो इनकलकेशन होती है वैल्यूज की स्कूल्स में और पेरेंट्स की तरफ से, वो बड़ी एक लिमिटेड होती है। उनको बस एक लिमिट तक बताया जाता है कि जी आपने मतलब या ये हो तो ये कर लें, ये हो तो ये कर लें। लेकिन यू आर नॉट एक्चुअली taught how to respond to certain situations in a social setting, and you're not like कहते हैं ना, taught to how to respond to someone in an individual setting। अपने emotions को किस तरह आपने काबू में रखना है in a social setting। At times the situations get very complex and tough and difficult। आपकी किसी को लेकर के साथ लड़ाई हो गई है एंड देन वी सी कि वो हाथापाई में तब्दील हो जाती है, या बहुत ज्यादा पर्सनल वेंडेटा उसमें आ जाता है। बट अगेन यू नीड टू एक्चुअली मेंटेन अ प्रोफेशनल कॉर्डियल एनवायरनमेंट, जहां पे अपने प्रोफेशनल कंसर्न्स प्रोफेशनली आगे लेके जाएं, डिस्पाइट कि आप लड़ने भिड़ने के ऊपर आ जाएं या एक दूसरे की टांगें खींचने लग जाएं जहां पे जॉब इनसिक्योरिटी हो, बिकॉज ऑफिस पॉलिटिक्स इज अनदर सिनेरियो। अगर आप लीडरशिप के अंदर बात करें, दैट इज अनदर टीम रिलेटेड रोल। तो अगर आपके अंदर, इफ यू आर अ गुड लीडर, देन ऑफ कोर्स यू नो हाउ टू मैनेज पीपल। यू नो हाउ टू लाइक ऑफ कोर्स किस तरह से आपने लोगों को आगे लेके चलना है। ठीक है। एंड यू नो अबाउट पीपल मैनेजमेंट। वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर आपको टीम के अंदर चलना आता है। बट ऑफ कोर्स इफ यू आर अ थिंकर एंड इफ यू वांट टू वर्क अलोन एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ स्टार्टअप और यू आर प्लानिंग फॉर योर ओन बिजनेस, तो उसके अंदर हो सकता है बहुत ज्यादा कि since you are like a soul thinker and you are a solo thinker and you like to reflect on things and you want to do new things, तो उसमें फिर आप अपने startup opportunities लेके आ जाते हैं। But again that actually requires resilience as well, because to start something new will always you can say attract problems will, again that is very normal। जो भी चीज़ आप नई स्टार्ट करते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उसमें हर्डल्स भी आते हैं। एंड ऑफ कोर्स वन बाय वन एज एट द टाइम गोज बाय you start to become better at it and then you become resilient। इसके अंदर आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, साइड हसल शुरू कर रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ वेरी गुड एनोलॉजी इन दिस ऐसे बाय सेइंग दैट के while you're working in an organization then of course you need to be a team player, but when you are doing some kind of a side hustle या कोई आपकी साइड में कोई एक ऐसी चीज है जो आप बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, तो मे बी यू कैन एक्चुअली गो टूवर्ड्स योर सोलो बिजनेस, और उसके अंदर फिर आप आगे चीजें वो फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। सो या these are the things that we can talk about। ये काफी चीजें हैं जिसको हम जो है ना इनके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। these are very you can say this is a very good topic overall। टीचिंग के अंदर हमारे पास या एजुकेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, प्लीज लिख लें अपने पास। सो एजुकेशन में आपके पास टॉपिक्स आ जाते हैं जी। लिख लें चिल्ड्रन एंड एजुकेशन,
चिल्ड्रन एंड एजुकेशन। दूसरा हमारे पास आ जाता है जी रेलेवेंट सब्जेक्ट्स। रेलेवेंट सब्जेक्ट्स। नंबर 3 इसमें आ जाता है हमारे पास एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं। एजुटेक किसे हम कहते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुटेक से बहुत ज़्यादा टॉपिक आ रहे हैं। वो कहते हैं कि कितनी टेक्नोलॉजी आज इन्वॉल्व हो गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल, अब पहले किसी ज़माने में हम जाते थे तो एक वाइट बोर्ड होता था या ब्लैक बोर्ड होता था, चौक हो रहे होते थे, चौक का डब्बा पड़ा होता था, सीट्स इस तरह की होती थी जिसमें हम पुराने स्कूल देख लें, आज के जो मतलब थोड़ी देर पहले के भी स्कूल देख लें, लेकिन अब क्या है, हमारे पास एक पूरा वो होता है, क्या प्रोजेक्टर लगा हुआ है। टीचर लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल मी टीचर लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, अपना प्रोजेक्टर पे स्लाइड चला रहा है, बच्चे देख के उसको स्लाइडों को लिखी जा रहे हैं, पूछना है तो कुछ पूछ रहे हैं, वरना वो भी जरूरत महसूस नहीं करते। सो अगेन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड, हैज एक्चुअली चेंज द एजुकेशन लैंडस्केप। आज मेरी क्लास आप लोग, अक्सर ऐसा होता है कि मेरी जो जूम के अंदर क्लासेस, ऑनलाइन क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं, जो फिजिकल प्रेजेंस होती है, उससे ज्यादा बैठे होते हैं। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? वाई? बिकॉज वी हैव जूम सेशंस नाउ। ठीक है, अक्सर बच्चे ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं, कभी कभार कोई फिजिकल क्लास नहीं लेने आ सकता, चलें जी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। आप लोगों के अलावा भी बच्चे हैं जो मेरे से रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हैं ऑन डेली बेसिस। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनके लिए जाते हैं। एंड दैट इज बेसिकली, लिख लें प्लीज अपने पास, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। वन इज ऑनलाइन एजुकेशन, लिख लें प्लीज अपने पास। ऑनलाइन एजुकेशन क्या है कि जी मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज को रेफर कर रहा हूँ, मे बी अ लेक्चर इज वेल, और ये सारी ऑनलाइन एजुकेशन है। ठीक है। देन देर इज वन डिस्टेंट डिस्टेंट एजुकेशन, या डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर हम कहते हैं, या डिस्टेंस लर्निंग जिसे हम कहते हैं। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरा जो ये लेक्चर है, आफ्टर द क्लास इज ओवर एंड शाम को अवैस बैठता है या नुमान बैठता है और वो मेरा लेक्चर सुनते हैं, सो दैट इज डिस्टेंस लर्निंग। जहाँ पे आपका जो टीचर है वो आपके सर पे बैठ के आपको कुछ नहीं करवा रहा, आप वो खुद ही आप लेक्चर ले रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड इफ दे feel or if they deem that they have any kind of questions, they'll feel free to ask about it. इसी तरह फिर फर्दर इसमें आपके पास हाइब्रिड मॉडल भी आ गया, दिस इज हाइब्रिड क्लास बेसिकली। मेरा लेक्चर अभी अभी अनस भी यहाँ पे बैठ के ले रहा है, आप लोग तीनों भी मेरे साथ बैठ के ले रहे हैं। हो सकता है इफ एनीबडी एल्स इज गोइंग टू कम इन वॉक इन, तो फिर वो भी ज्वाइन करें। तो दिस इज काइंड ऑफ अ हाइब्रिड काइंड ऑफ अ क्लास। ठीक है। और हाइब्रिड क्लास के अंदर फिर यही होता है सिनारियो कि आपका जो लेक्चर है वो एक वक्त के अंदर मुख्तलिफ लोगों को जा रहा होता है। देन यू कैन टॉक अबाउट रोल ऑफ टीचर्स। टीचर्स का क्या रोल होता है स्टूडेंट्स की जिंदगी के अंदर, सो दैट इज समथिंग you can talk about. For example, I had a class fellow back in लम्स, और उसमें यह था कि वो उसने एक दफ़ा बताया कि शी was teaching वन क्लास चाइल्ड, क्लास 1 में था बच्चा, और कहते हैं जब वो आता था तो मुझे एक दिन ऐसा लगा कि his body is bruised, उसके ना मतलब निशान पड़े हुए हैं मारने के। और इवेंचुअली ये पता चला कि उसके घर में जो है वो अच्छा खासा बच्चों को मारा जाता है, मतलब एक लेवल से ऊपर चले जाते हैं जब वो बेल्ट से जो भी चीज हाथ में आई, तो कहते हैं वो बेचारा ना बहुत ही डाउन हुआ होता था वगैरह। तो कहते हैं कि मुझे एक दफा मुझे जो है ना, एक दिन मुझे हुआ कि आई नीड टू टॉक टू द प्रिंसिपल, कि ये ना, ये रुकवाएं, ये बच्चे का ना पता नहीं बहुत ज्यादा मारा जाता है, मुझे तो उसकी जान का खतरा लग रहा है आज जो उसकी हालत बनी हुई है। तो the principal actually called in the parents and eventually found out that parents used to hit the child very badly, mother and father inclusive, और फैमिली कल्चर ऐसा था। तो टीचर का कितना रोल है, क्या वो घर के अंदर भी दखलंदाजी कर सकता है, क्या वो बच्चे को कितना पढ़ा सकता है, कितना उसको आगे लेके जा सकता है। आप जाहिर सी बात है कि इन अ क्लास सेटिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर to focus on you can say every child, but again now teachers try as well. फिर इसमें हम बात कर सकते हैं डिसिप्लिन एंड रूल्स इन स्कूल। ये बड़ा ज्यादा हमारे पास आता है कि डिसिप्लिन की मतलब अगर हम टॉपिक उसमें देखें कि हाउ द पीपल एंड हाउ द चिल्ड्रन शुड बी डिसिप्लिन्ड, शुड देयर बी फिजिकल पनिशमेंट, फिजिकल पीनलाइजेशन, और देयर शुड बी सम अदर सॉर्ट ऑफ पीनलाइजेशन, रूल्स क्या होते हैं स्कूल के, वो सारी चीजें। फिर इसमें बात आ जाती है सिंगल जेंडर यूनिवर्सिटीज, सिंगल जेंडर स्कूल्स, आर दे रियली हेल्पफुल दीज डेज? क्या सिंगल जेंडर स्कूल से या सिंगल जेंडर यूनिवर्सिटी से कोई फायदा होता है? तो फॉर एग्जांपल माई टेक इज कि जहाँ पे रिलीजियस वैल्यूज बहुत ज्यादा इनकलकेटेड हैं, एंड जहाँ पे पीपल फील दैट दे शुड नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू को एजुकेशन, तो वहाँ पे बिल्कुल हमारे पास जो है वो ये समझ लें कि उनके पास जरूर होना चाहिए, क्या नाम है, ऑप्शन होना चाहिए फॉर सेपरेट स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड सेपरेट यूनिवर्सिटीज फॉर गर्ल्स, सो एटलीस्ट फीमेल्स आर नॉट डिनाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। लेकिन अगर
जो है वो मतलब एक तरह से वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर तो जाहिर सी बात है कि को एजुकेशन पूरी दुनिया में है, चल रहा है, पाकिस्तान में है, चल रहा है। वी डू हैव को एजुकेशन, सॉरी, वी डू हैव सिंगल जेंडर इंस्टीट्यूशंस इन लाहौर। फॉर एग्जांपल कैनेड कॉलेज है या लाहौर कॉलेज है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप बाकी जगहों, बाकी शहरों में भी होंगे, आई एम नॉट फेमिलियर। बट द फैक्ट इज के उसका उन मतलब जो सिंगल जेंडर यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं उसके ऊपर, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। वन टेक अवे इज के एक तरह से एक तरह से मामला ये बनता है उस सारे सिनारियों के अंदर के मुझे ऐसा लगता है कि दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल व्हेन दे गो इनटू अ प्रोफेशनल सेटिंग, और स्पेशली द फीमेल्स। वो जनरली फीमेल एनवायरनमेंट में रही होती हैं, बट व्हेन वंस दे गो इनटू अ competitive environment, so it becomes a problematic for them. But of course उसके अंदर जो है वो उसमें वो एक तरह से मतलब अगेन देयर इज अ रिलीजियस एस्पेक्ट टू इट, देयर इज अ कल्चरल एस्पेक्ट टू इट, वी कैन नॉट ऑफ कोर्स उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते सारे सिनारियों के अंदर। तो अगेन उसके अंदर ये है कि इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब और आपकी कितनी ग्रूमिंग हुई हुई है को एजुकेशन में, बिकॉज मेन एंड फीमेल्स बोथ, men males and females both are now present in the workplace, and mostly they are coming from co-education. For anyone who's going from a single gender institute, उसके लिए बड़ा इशू हो जाता है आगे जाके एडजस्ट करना, बिकॉज द competition is different in co-institutes. The kind of approach people have is very different in co-institutes. So how do you survive in very co-competitive environments? तो अगेन इसमें हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे आगे। यूनिफॉर्म का एक टॉपिक आता है जी। आर यूनिफॉर्म्स नेसेसरी? व्हाट डू यू थिंक? स्कूल लेवल में नेसेसरी है? मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म्स आर अ गुड वे टू somehow bring equality or give a sense of equality among children. Not every child comes from a rich home, not every child comes from a poor home. एक मुझे आज भी याद है कि मुझे अपने स्कूल के दोस्तों के साथ खास तौर पे आई नेवर इवन थॉट अबाउट इट कि वो किस सोशल फाइनेंशियल क्लास से ताल्लुक रखता है। ना उनको हमारे बारे में, मेरे बारे में पता होगा, ना मेरे जो जो मैं मेरा उनके साथ था वो ये नहीं था कि मतलब वो कोई एक सर्टेन सोशल इकोनॉमिक क्लास है इसलिए मैं उनके साथ अपनी रैपो बनाता हूँ या नेटवर्किंग करता हूँ। वी वर फ्रेंड्स एंड वी वर जस्ट गुड फ्रेंड्स बिकॉज दीज वर माई क्लास फेलोज। इवेंचुअली नाउ दे आर लाइक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स एज वेल। अब मेरा एक दोस्त जो है माशाल्लाह, वो पीछे से ही इज अ सन ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ही इज अ डॉक्टर। उसका जो घर है वो मैं हमेशा उसका जिक्र करता हूँ कि उसका जो घर है वहाँ पे बैरियर टाउन में, वो एटलीस्ट इट इज 6 to 7 कनाज माशाल्लाह। एंड वो जहाँ पे मलिक रियाज का घर है उसी के लेन के अंदर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो वहां पे उसका घर है। तो यू कैन इमेजिन, एंड व्हेन आई वाज इन स्कूल आई नेवर थॉट ऑफ हिम लाइक दैट। इट इज ओनली आफ्टर स्कूल आई गॉट टू नो। और अब शायद मतलब मैं उस वजह मैं उसको उसी तरह ही मिलूंगा जिस तरह मैं स्कूल के अंदर मिलता था। लेकिन हाँ, स्कूल के बाद जितनी भी मैंने फ्रेंडशिप्स की होंगी तो मैंने कहीं ना कहीं किसी लेवल पे मैंने देखा जरूर होगा सबकॉन्शियसली कि ये तगड़ा है पीछे से, ये तगड़ा नहीं है। सेम गोस फॉर ऑलमोस्ट एवरी जेंडर, फॉर द अदर जेंडर एज वेल। एजुके फिर इसमें फंडिंग, हु शुड फंड द एजुकेशन, गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन इज गुड और इज इट गवर्नमेंट एजुकेशन? किसकी जो है वो गवर्नमेंट एजुकेशन किसकी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एजुकेशन जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पूरी दुनिया में गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एजुकेशन। एजुकेशन इज अ यूनिवर्सल राइट। हाउएवर जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं हैं वहाँ पे पीपल रिजॉर्ट टू प्राइवेट एजुकेशन। ठीक है, वो प्राइवेट एजुकेशन में चले जाते हैं। एंड दैट इज समथिंग दैट इज लाइक ऑफ कोर्स देयर एज वेल। और उसमें फिर ये है कि एजुकेशनल एड टू पुअर कंट्रीज, एजुकेशनल एड टू पुअर कंट्रीज, एजुकेशनल एड टू पुअर कंट्रीज में बात आ जाती है कि क्या जो हमारे पास रिच कंट्रीज हैं उनको पुअर कंट्रीज को एजुकेशनल एड देनी चाहिए? फॉर एग्जांपल ओ लेवल्स, आपको क्या मतलब, देखा जाए तो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, माय पर्सनालिटी ग्रूम्ड। बट आफ्टर आई ग्रू अप एंड आफ्टर आई स्टडीड इकोनॉमिक्स एंड स्टफ आई फाइनली अंडरस्टूड ये इतने बच्चे इकट्ठे ओ लेवल्स में पेयर होते हैं, पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है। somehow the colonial system has stayed with us कि वो अपना एक बिठा गए हैं सर पे कि जी आप ये एजुकेशन कर लें, ठीक है, क्वालिटी भी है, सब कुछ अच्छा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप वहां पे पैसे बाहर जाते हैं हमारे। एंड देन आई दे द आइडियाज आर इनकलकेटेड दैट आर वेस्टर्न इन नेचर। ठीक है, वेस्टर्न आइडियाज इनकलकेशन ऐसे ही होती है। आपकी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप क्या है? फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यही है कि बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं एंड देन एट द एंड ऑफ द डे दे आर इनकलकेटेड विद द वेस्टर्न वैल्यूज बिकॉज दे आर स्टडिंग इन द यूएस इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, वहां पे वही, और हमारे यहाँ पे क्या लोकल हमारी वैल्यूज हैं, उनकी क्या वैल्यूज हैं, एट टाइम्स जमीन आसमान का फर्क होता है। सो यू नीड टू कीप अ बैलेंस इन बिटवीन। आई एम नॉट सेइंग एजुकेशन, तो आपसे कहते हैं ना एजुकेशन के लिए ट्रैवल भी करना पड़े करें,
लेकिन इट इज अ वे टू टेल कि आर कल्चर, आर एजुकेशन सिस्टम, आर वैल्यूज, आर इकोनॉमिक्स, आर पॉलिटिक्स इज सम हाउ बेटर देन यू। और हो सकता है कि पल्ले कुछ भी ना हो, लेकिन अगेन सम हाउ कि आप डोमिनेट कर सकें किसी तरह दूसरे पे। तो आप यही है कि आप सम टाइम बताते हैं कि जी हमारी रिसर्च भी हमारी जुबान में इंग्लिश में होती है, हम सारा कुछ, हमारे बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं वो हमारे इंग्लिश जुबान के अंदर ही हैं, सारे एक जो भी सब्जेक्ट उठा लें। तो सम हाउ एजुकेशन इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक अराउंड द ग्लोब। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल हैं। एजुकेशन के अंदर हमारे पास जो मैंने आपको आज टॉपिक कोट करवाए हैं, दीज आर द टॉपिक्स दैट यू कैन ऑफ कोर्स टॉक अबाउट एज वेल। इसके अंदर जो है वो, यप, दिस इज व्हाट वी हैव। लेट मी शेयर द राइटिंग टास्क वन विद यू गाइस। इट इज अगेन फ्रॉम आइल्स बुक 12, ये आइल्स बुक 12 का टॉपिक था, तो काइंडली नोट कर लें। इट्स अ वेरी रिच टॉपिक, आई आई रियली लाइक दिस टॉपिक इज वेल। लेकिन ये है कि इट इज समथिंग दैट वी कैन ऑफ कोर्स लाइक कीप कमिंग बैक ऑन। अच्छा जी, लेट मी शेयर द टास्क वन। जी, जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, आई हैव शेयर्ड द टास्क वन विद यू गाइस। एकेडमिक स्टूडेंट्स, आई एम शेयरिंग इट। जी, एकेडमिक स्टूडेंट्स, आई हैव शेयर्ड द टास्क वन विद यू गाइस इन द ग्रुप। पहले एकेडमिक वालों की बात कर लें। द चार्ट बिलो शोज हाउ फ्रीक्वेंटली पीपल इन द यूएसए एट इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स बिटवीन 2003 एंड 2013। Frequency of eating fast food restaurants among people in the USA. It is a bar graph। और उसमें ये है कि उन्होंने बताया कि जी एवरी डे कौन कौन खाता है, several times a week, once a week, once or twice a month, a few times in a year, never। तो ये सारे जो हमारे पास हैं, इट इज काइंड ऑफ अ बार ग्राफ दैट इज प्रोवाइडेड। ऑन द एक्स एक्सिस उन्होंने फ्रीक्वेंसी बताई है, ऑन द वाई एक्सिस परसेंटेज ऑफ पीपल बताए हैं। तो सबसे पहले यू विल बी रीफ्रेजिंग द टॉपिक, ऊपर जो दो लाइनें लिखी हुई द चार्ट बिलो से लेके 2013 तक, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव ओवरव्यू। हमने उसको ओवरव्यू भी देना है, उसके साथ जो है ओवरव्यू के अंदर हम बताते हैं कि अगेन यू नीड टू हाईलाइट द मेन ट्रेंड्स दैट आर आउट देयर। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ ए एंड बी, जिसके अंदर फिर आप नंबरिंग के साथ जो जो चीज़ें हैं उनको आप एक्सप्लेन करते हैं। So this is basically task one. I'm giving you 20 minutes, guys. Please start writing on it. You have the task with you. फिर उसमें आ जाता है जी जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स जो हैं। जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, a large company in your area has decided to spend a certain amount of money either to sponsor a local children's sports team for 2 years or to pay for two open air concerts. It has asked for feedback from the general public. Write a letter to the company in your letter। अब आगे से वो एक फॉर्मल लेटर है, तो you'll be starting the letter by saying dear sir slash madam with an opening statement followed up by body paragraph A, that is going to be the first bullet, body paragraph B, that is going to be the second bullet, body paragraph C, that is going to be the third bullet, then the closing statement, and नीचे आप लिखेंगे yours faithfully and your full name below। So I'm giving you 20 minutes, guys. You guys know it about it as well already. Kindly start writing and let me know if you have any questions. Please start writing.